Hey guys, I hope you are fantastic at your place. Today I am very glad to inform you that I am going to start a series for the public administration optional, the questions that were asked by UPSC in 2020. Right? I will be having 15 to 20 videos for per question from 7 to 8 to 10 minutes, right? Or even 15 minutes as per requirement, as per length of the questions, so as to have the independent analysis and the content that are to be given in a question, right? So to begin with, the first question that was asked in 2020 was that the strength of public administration lies in the exploration of the complexities and nuances of policy making and policy implementation. I repeat the language of the question. The strength of the public administration lies in the exploration of the complexities and nuances of policy implementation and policy making. So this is a question to begin with, and we have to put answer and analysis for this. Now, to begin with, like this question can be from public policy chapter, right? It can also be from the Woodrow Wilson's perspective. So to begin with, you all have covered the kind of stages of the evolution of public administration. In that, what are the stages? I just need to recall all that. That political administration dichotomy, 1887, right? Then the era of principles, then era of challenges, then crisis of identity, and followed by public policy perspective, right? So in Nicholas Henry terms, these stages are somewhat different. In Frank J. Goodnow terms, these evolutionary phases are somewhat different. But to begin with, the demand of the question says that on the one hand, policy implementation, and on another hand, policy making. So be it headquarter or field relationship, or be it democracy or bureaucracy. So if we look at this question, that the birth of public administration, the birth of bureaucracy exclusively, why it was there? Because democracy was looking after two functions. It was making the policy and it was applying it. So जब कोई पॉलिसी बना रहा होता है और उस चीज को अप्लाई करता है तो वो अपनी मिस्टेक्स को तो निकाल कर लाएगा नहीं. If the birth of public administration is looked at, one of the major reason was spoil system. तो जो डेमोक्रेसी के अंदर के लोग थे, जो गवर्नमेंट के अंदर के लोग थे, वो अपनी जो मनमानी थी वो करते थे. तो इसीलिए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जन्म हुआ. पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने काफ़ी अपोज किया इस चीज़ को, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो पब्लिक इम्प्लीमेंटेशन लाइक जो पॉलिसीज होती हैं उन इम्प्लीमेंटेशन के बारे में है. तो जब इम्प्लीमेंटेशन अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट बन जाता है तो फिर पॉलिसी मेकिंग को फिर थोड़ा सा अलग ही कर दिया जाए. ये बहुत इंपॉर्टेंट था. नाउ इस क्वेश्चन के अंदर में हमें यदि शुरुआत करनी है तो हमें ये लिखना पड़ेगा दैट पॉलिसी कैन बी डिफाइंड एज द डेलिब्रेशंस which are researched upon and well executory mechanisms are there so as to have the efficiency and effectiveness for whatever we are doing. This is the policy for corona time, this is the policy for education, this is the policy for you can say e-rupia which was launched just days back. So any policy or program, right, it has to have the success, otherwise there will be wastefulness. So petrol or diesel price are going high in India nowadays. So what is the policy behind it? Isn't government bothering or bothered about it? Yes. So we have to look at the policy making first. So policy making, if it is wrong to begin with, then policy implementation will also be wrong. If policy making is good, then policy implementation may be improved upon. But जब पहला बिल्डिंग ब्लॉक ही हमारा गड़बड़ हो जाएगा तो फिर आगे की दीवार की बात ही क्या करनी है, राइट? तो इस चीज़ के अंदर में जो गोल सेटिंग्स होता है या रोल सेटिंग्स होता है, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. नाउ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो बर्थ है, अगेन मैं पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी में लेके आता हूँ और वहाँ पे पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन को कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा. तो इसके अंदर में जो पॉलिटिक्स थी, पॉलिटिक्स के अंदर में मान लीजिए मिनिस्टर्स होते हैं, वो पॉलिसी बनाते हैं. आज की डेट में मोदी जी हैं इंडिया के अंदर में, राइट?
या फिर यूएस में जॉय बाइडेन है, तो अपने अपने कंट्री के लिए ये लोग पॉलिसी बना रहे हैं। अब वो पॉलिसी सही है या गलत, ये तो खैर उनका डिस्क्रेशन है, उन्होंने पॉलिसी बना दी, लेकिन पिछले एक्सपीरियंसेस को देखना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए हम डिमोनेटाइजेशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। नाउ डिमोनेटाइजेशन की जो पॉलिसी थी, जो हमने एकदम से अप्लाई कर दी करप्शन को ख़त्म करने के लिए, क्या वो सही थी? क्या हमने दूसरे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पर भी रहे थे, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह सर थे, क्या उनसे इस चीज़ के लिए ओपिनियन लिया? तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर कर जाती हैं। फिर हमने जब उस चीज़ को अप्लाई किया तो क्या हमारे पास जो सफिशिएंट नोट्स थे, क्या वो अवेलेबल थे? लोगों को कितनी परेशानी होगी, क्या हमने इस चीज़ के बारे में सोचा था? क्या हमने ये देखा था कि पूरे दूसरे जो कंट्रीज में डिमोनेटाइजेशन को हमने अप्लाई किया तो उसके क्या रिजल्ट मिले? तो जो पॉलिसीज हैं वो हमें इमोशनली ड्रिवन ना होकर प्रैक्टिकली ड्रिवन होनी चाहिए, राइट? सो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। नाउ यदि हम लोग कोरोना की बात करें तो हमने पॉलिसी बनाई कि सब लोगों को हम लोग वैक्सीन देंगे, फिर हम लोग दूसरी कंट्रीज से भी वैक्सीन लेकर आएंगे। पॉलिसी बनी कि बहुत सस्ती होनी चाहिए और सरकार ही इस चीज को एफर्ट करेगी, सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन आज तक क्या हम थर्ड वेव को अवॉइड कर पाए हैं? ये इम्प्लीमेंटेशन की बात है। नाउ इम्प्लीमेंटेशन में यदि हमने कोरोना के फैलने की जो चेन है उसको ब्रेक रखा तो थर्ड वेव नहीं आ पाएगी। तो ये इम्प्लीमेंटेशन में एग्जीक्यूटिव का काम है, डिफरेंट मॉडल्स का काम है। से फॉर एग्जाम्पल, शुरुआत में जब कोरोना आया था तो केरला के अंदर में हब एंड स्पोक मॉडल था जो बहुत अच्छा काम कर रहा था, उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रोल किया था। लेकिन लास्ट तक आते आते सेकेंड वेव के बाद केरला वॉज द ओनली स्टेट वेयर इन द स्पर्ट in corona cases was there. So we have to study consistently. There has to be a feedback mechanism to connect the headquarter that these are the changes which are required in the policy, right? So headquarter field relationship, policy implementation and policy making, it is just one coin and two sides, right? These are the two sides of one coin, you can say. So that way I just want to say that if we need to write a question, I have given a question in the Google Drive, right, and the link I have shared in the description box. You can see that question. Now herein you can score 60% mark, you can score 65%, even you can score 45% also. It depends upon how you have written the answer using the same content. It's not about the content, it is about how you have written, how you have used the content, right? So to begin with, this was the first question, and एक नए स्टूडेंट के लिए एक बिल्कुल जो स्टार्टिंग से समझना चाहते हैं इस चीज़ को, आगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेने के लिए मैंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को कवर करने की कोशिश की, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जांपल लिया है सो दैट ये इजीली समझ में आ जाए। हालांकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो फर्स्ट पेपर है वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखा जाता है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखा जाता है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर 2 होता है जहां पर हम इन एग्जाम्पल्स को लिख सकते हैं। लेकिन जब एग्जाम होगा तो इंडियन पर्सपेक्टिव के बारे में हम पेपर 1 में कम लिखेंगे, ग्लोबल पर्सपेक्टिव के बारे में, यूनाइटेड नेशन के बारे में, दूसरी कंट्रीज के बारे में जो एक्सपीरियंसेस हैं ग्लोबल लेवल के, उनको हम ज़्यादा लिखेंगे। और हिस्ट्री में स्कॉलर्स ने क्या क्या बातें की हैं, वुड्रो विल्सन ने क्या कहा है, विलियम आउजी ने क्या कहा है, ये सारी की सारी बातें हम लोग लिखने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। आगे जो क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा मैं उनमें ये चीज़ें आती रहेंगी। सो ये पहला वीडियो था एंड जो वीडियो है उसकी लेंथ ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि उसे 10 मिनट तक का ही रखने की कोशिश करूँ। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर मीटिंग सून, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।